हाँ जी, वेलकम टू कैरियर क्वेस्ट। ठीक है। ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2D ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 3D ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 3D ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਊਬ, ਦੂਜਾ ਕਿਊਬੋਇਡ, ਤੀਜਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 3D ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਦੂਜੀ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਤੀਜਾ ਸਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ 3D ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੌਪ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੌਪ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਹੈਵਿੰਗ ਓਨਲੀ ਬੇਸ ਬਟ नो टॉप, मतलब बेस हैगा अपने को बट टॉप दा पोर्शन नहीं हैगा, तो उस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੌਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈਵਿੰਗ नो बेस एंड नो टॉप, ਬੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੌਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਫੇਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਲ ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸਦਾ ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਫੇਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਲੈਸ਼ LSA ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮਰਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਕਰਵ ਵਾਲਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ CSA ਜਾਂ LSA। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। क्लीयर। ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ, ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ 3D ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੇਸ, ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਿਗਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 3D ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਹੈਗਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਲਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਟਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਹ ਟੌਪ ਜਾਂ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖੇਗਾ। ਟੌਪ ਜਾਂ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਲ ਬਣੇਗਾ। ਦੋ ਸਰਕਲ ਬਣेंगे ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਲੋ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਮੇजिन ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਉਸਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਛੋਟਾ r। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂ, ਆ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ मैंने कवर ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, स्मॉल r। ठीक है। तो जे आ सेंटर पॉइंट तो लेके ਵੱਡੇ वाले सर्कल तक डिस्टेंस कवर करा उसनों मैं की कहूँगा कैपिटल R।
ठीक है। तो सिलेंडर की कुछ हाइट होएगी h, क्लीयर। हॉलो सिलेंडर विच छोटे सर्कल का डिस्टेंस छोटा r, वड्डे सर्कल का रेडियस वड्डा r, ठीक है। ये अंदरों खाली हैगा, ये वाला जिहड़ा पोर्शन है ये ना खाली हैगा, तुसीं इवें इमेजिन करो, हुण इमेजिन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जिहड़ा हैगा ये खाली हैगा। जे मैं इसनूं रब करदा इवें तां ये खाली हो जाएगा, ठीक है। हुण इमेजिन हो रहा, ठीक है, अंदरले पासों खाली हैगा, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट तो लेके छोटे वाले सर्कल तक डिस्टेंस थोड़ा स्मॉल आर, तो वड्डे वाले सर्कल तक डिस्टेंस हो जाएगा थोड़ा रेडियस कैपिटल आर, क्लीयर, ठीक है। इस तरीके का होएगा। तो जे मैं गल करा इसकी थिकनेस की, जे मैं गल करा थिकनेस, थिकनेस का मतलब उस हॉलो सिलेंडर की मोटाई कितनी हैगी, तो मैं जे गल करिए मोटाई की, तो मोटाई की आएगी, देखो ये इन्ना ही मोटा हैगा, ये जिहड़ा सर्कल हैगा, सर्कल जिन्ना गोल यही लेंथ आएगी मोटाई की, ठीक है। जे मैं कैपिटल आर विचों स्मॉल आर माइनस करदा, देखो मोटाई कितनी होएगी, आ ब्लू वाला पोर्शन जिन्ना होएगा, आ जिन्ना ब्लू वाला पोर्शन तुहानूं दिख रहा है इन्ना ही मोटा होएगा हॉलो सिलेंडर। ये लेंथ किवें आएगी, जे मैं कैपिटल आर विचों स्मॉल आर सबट्रैक्ट करदा तो ये की आ जाएगा थिकनेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो थिकनेस किवें आएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। थिकनेस की आएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगी, ठीक है। तो गल करते इसके कुछ फॉर्मूले आपने डिस्कस किए सीगे पिछे, वो डिस्कस करते हैं आप कि वो किवें दे ने। तो जे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ते लेटरल सरफेस एरिया की गल करा हॉलो सिलेंडर का, तो की आएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो बेस का पेरीमीटर किहो जिहा हैगा, बेस किहो जिहा हैगा इसका, हॉलो सर्कल की तरह हैगा। मैंसुरेशन 2D दे विच मैंने हॉलो सर्कल कंप्लीट करवा रखा है, तुसीं उत्थे जाके हॉलो सर्कल पहला देख लो तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। ये जिहड़ा हैगा बेस इज द हॉलो सर्कल हैगा, मतलब अंदरों खाली हैगा, ठीक है। तो हॉलो सर्कल का पेरीमीटर की हुंदा हैगा, पेरीमीटर ऑफ हॉलो सर्कल, पेरीमीटर ऑफ हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल का पेरीमीटर की लिखवाया सीगा मैंने 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये चीज़ मैंने लिखवाई सीगी। हॉलो सर्कल का पेरीमीटर की हुंदा 2 पाई ब्रैकेट विच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये मैंने 2D विच करवा रखा हैगा, ठीक है। जे तुसी इसी लैक्चर तो स्टार्ट करो तो समझ कुछ नहीं आना, स्टार्टिंग तो देखो तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पर्सनल गारंटी लीती हुई है कि इस तो बाहर पटवारी विच क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब कंसैप्ट कह लो पूरा एज इट इज नहीं कि हाँ यही क्वेश्चन पाता एग्जामिनर ने, ठीक है। इस तो बाहर कोई कंसैप्ट तो क्वेश्चन नहीं आता, मैं पर्सनल गारंटी लेके चैलेंज करदा, ठीक है। जे आ गया फिर कहना, वीडियो उत्थे पई है नाल दी नाल, क्लीयर चेक करने लई। तो पेरीमीटर ऑफ बेस की आ गया 2 पाई ब्रैकेट विच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो हाइट सिलेंडर की हैगी है एच, तो फॉर्मूला की बन जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू हाइट एच, तो ये हो जाएगा अपना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। जे मैं गल करा टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला की होएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया तो वही है 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, ये तो आ गया। देखो इसका बेस कैसा हैगा, हॉलो सर्कुलर हैगा, ठीक है। तो हॉलो सर्कल का एरिया क्या होंदा हैगा, फॉर्मूला की हैगा एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। बेस का एरिया, बेस किस शेप का हैगा, हॉलो सर्कुलर का, क्योंकि सिलेंडर भी हॉलो हैगा, ठीक है। तो हॉलो सर्कल का एरिया की होएगा एरिया ऑफ हॉलो सर्कल, एरिया ऑफ हॉलो सर्कल की आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, अगेन मैंसुरेशन 2 की वीडियो देख लेना, उत्थे मैंने पूरा डिटेल विच दस्या होएगा। देखो पूरे डिटेल विच दसूंगा तो टाइम ही वेस्ट होएगा, ठीक है। तो बैटर तुसीं वो वीडियो देख लेना। ये आ जाएगा 2 पाई कर्व्ड सरफेस एरिया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, बेस का एरिया की हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, टॉप का एरिया भी की होएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि जिस शेप का बेस हैगा उसी शेप का टॉप हैगा। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो एंड विच फॉर्मूला की बन जाता है 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का, क्लीयर। तो जे मैं गल करा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की आएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस का एरिया की है
पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये तीन फॉर्मूले बनते हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ बेसिक फॉर्मूलेस तो यूज करके ड्राइव किए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। ਆਪਾਂ ਹੁਣ डायरेक्ट क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋल्व करने हैं। चलो ਚੱਲਦੇ हैं। देखो मैंसुरेशन 3D ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੌਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਊਬੋਇਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਨੇ ਤੇ 2D ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਡਰਾਈਵ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ? पहला क्वेश्चन है अपने को अ हॉलो सिलेंडर ट्यूब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब की होया जो मान लो आ सिलेंडर है, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर इस दी हाइट हैगी है। जे मैं इसनों इवें लटा दा तो ये की हो जाएगा हुण 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। तो लॉन्ग का मतलब की हैगा अपनी हाइट दी हुई है। हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ आयरन। इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो एक्सटर्नल डायमीटर का हैगा वड्डे वाला डायमीटर। वड्डे वाला डायमीटर का मतलब की होया कैपिटल रेडियस, कैपिटल वाला सर्कल, ठीक है। एक्सटर्नल डाया कितना हैगा 8। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना आ जाएगा? एक्सटर्नल रेडियस मतलब कैपिटल आर, डायमीटर का अध 4। इंटरनल डाया कितना हैगा 6। तो इंटरनल रेडियस कितना आ जाएगा इसका हाफ 3, ठीक है। पूछा कि द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द क्यूब, ठीक है, ट्यूब सच ट्यूब बनाने वास्ते कितना वॉल्यूम आया होना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ला दो सिंपल, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है 22/7। देखो जो पाई की वैल्यू इन्होंने 22/7 नहीं कही तो भी आप 22/7 ही लवांगे क्योंकि ये जर्नल है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इस नाल, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट है 20, 22/7। एक सेकेंड, 22/7 16 माइनस 9 कर देंगे 22/7 7 गुना 20, 7 नाल 7 कट गया, 22 नूं 20 नाल करो उरे आ जाएगा 44 440। ऑप्शन सी आ जाएगा। लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है 440 आ जाएगा। सुल्तान वाला गाना याद आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज 748। हुण देखो ध्यान नाल वॉल्यूम दिता होया कितना 748। जिहड़ी चीज़ दिती होंदी है वो लिख लो, किस च दिती हो सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ दिती है 14 यानी हाइट दे रखी है 14। एक्सटर्नल रेडियस कितना 9। थिकनेस पूछी हैगी है। देखो थिकनेस की होंदी है, मैं हुणे दस के हटिया थिकनेस की आती है आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही थिकनेस हैगी है। जे मैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू कट ला तो मेरा आंसर आ जाएगा डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो कैपिटल आर ते स्मॉल आर पता होना चाहिए। कैपिटल आर कितना, देखो एक्सटर्नल रेडियस मतलब कैपिटल आर कितना दे रखा 9 सेंटीमीटर। स्मॉल आर पता करना है, यही तो नहीं दिता होया, ठीक है। जे ये पता लग जाए थिकनेस आप कट लाँगे। वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट, वॉल्यूम का फॉर्मूला की होंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये आ जाएगा अपने को पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आ गया 9 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हाइट कितनी है 14, कि इक्वल है 748 के। हुण बेसिक कैलकुलेशन है 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस आर स्क्वायर, ये 14 नीचे चल जाएगा डिनोमिनेटर से, 7 ऊपर चल जाएगा 22 थले आ जाएगा। 7 के टेबल से कट तो 2 के टेबल से कट जाएगा
374 इवें आएगा 374 आ जाएगा अपने को। ओके 22 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਦੋ। ਹੁਣ 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 3 ਤੇ 4, 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ 2, ਇਹ ਜਾਏਗਾ 17। 81 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਕੁਆयर ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 17। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਰ ਸਕੁਆयर ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 17 ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 81 ਮਾਈਨਸ 17। ਆਰ ਸਕੁਆयर ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ 81 ਚੋਂ 17 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ, 81 ਚੋਂ 17 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? 16 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰ ਸਕੁਆयर ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 16। आर स्क्वायर इक्वल टू 16 तो आर की वैल्यू की आएगी √16। देखो √16 तो मतलब आर की दो वैल्यू, देखो आर स्क्वायर 16 तो दो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस, आप माइनस नहीं लवांगे। आर की वैल्यू की आ जाएगी +4। ठीक है, प्लस द वैल्यू लेनी होती है ये, एक सेकेंड सॉरी 16 नहीं आएगा, गलती होगी, 64 होएगा। सी आर स्क्वायर आ जाएगा 64, रेडियस कितना आएगा √64। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8, स्मॉल रेडियस आ गया 8, तो थिकनेस की आ जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विच इज 9 माइनस 8 1 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलो थर्ड क्वेश्चन की कह रहा है अपने को, होलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगेन हाइट दे रखी है थानू 21 सेंटीमीटर। एंड इट्स एक्सटीरियर डायमीटर इज 8, एक्सटीरियर डाया 8 है तो एक्सटीरियर रेडियस कितना आ जाएगा 4। थिकनेस पाइप की कितनी है 1, देखो थिकनेस 1 हैगी है, इसका मतलब आर माइनस आर कितना दे रखा है 1, कैपिटल आर कितना 4, 4 माइनस आर इक्वल्स टू 1, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो स्मॉल रेडियस कितना आ गया साढ़े कोले 3 सेंटीमीटर। एंड द आयरन वेट 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देखो इसका मतलब की हैगा आयरन वेट 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। की होया मेरे को एक आयरन पाइप है, मान लो ये आयरन की पाइप हैगी है, ठीक है मन के चल लेंदे ये लोहे की पाइप हैगी है, इसका जो भी वेट हैगा दिता होया, इसकी हाइट मान लो 21 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल रेडियस 4 है, इंटरनल रेडियस 3 है। ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਦਾ weight ਹੈਗਾ ਨਾ, देखो weight ना एग्जामिनर अपने हिसाब नाल देगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, गूगल टाइप करोगे थानू गूगल दस देगा किहड़े एग्जाम च आया। ठीक है, सर्च कर लेना आप। आयरन का वेट कितना आएगा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब की हुंदा हैगा जे मेरा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना तो वेट कितना होएगा 8 ग्राम। मतलब की होया जे मेरा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आया तो वेट कितना हो जाएगा 8 ग्राम। जे मेरा वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब आया तो वेट कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 ग्राम। जे मेरा वेट मान लो 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, मेरा वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो वेट कितना हो जाएगा, इस पाइप का वेट कितना हो जाएगा 8 × 5 40 ग्राम। ठीक है, जे मान लो इस पाइप का वेट वॉल्यूम, इस पाइप का जो वॉल्यूम है वो आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो पाइप का वेट भार कितना हो जाएगा 8 × 10 80 ग्राम, 8 तोला आ जाएगा। क्लीयर, तो आप की करते हैं ये स्टैंडर्ड इन्होंने दिता होया कि जे 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम विच लोहे का भार कितना होंदा 8 ग्राम। आपने की दसना हैगा वेट ऑफ द पाइप, पाइप का वेट दसना हैगा पाइप कितना भारा हैगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इसका मतलब सानू वॉल्यूम पूछा हैगा, वॉल्यूम पता करना पड़ेगा पहला। वॉल्यूम किवें आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, बाई बटा 7 कैपिटल आर स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हाइट 21। ठीक है, चलो 16 माइनस 9 7, मैं डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 21 7 ਨਾਲ 7 कट गया, 22 × 7 कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान नाल समझना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना हैगा 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया 8 ग्राम। 154 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम वेट कितना आ जाएगा 154 ×
8 ग्राम, ठीक है। 8 चौके 32, 2 3 8 5 40, 3 4 8 चौके 12, 1232 ग्राम, 1232 ग्राम। एक सेकेंड, हॉलो आयरन पाइप 1 सेंटीमीटर, वेट 8 ग्राम, पाई आर स्क्वायर माइनस आर। एक्सटीरियर डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 हो जाएगा, थिकनेस 1 हैगी है तो ये 3 आ जाएगा अपने को। 16 माइनस 9 7 7 नाल 7 कट गया, ओहो पूरी गलती की हुई है। 22 गुना 21 आएगा, 21 दूनी 42, 462 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 1 ग्राम विच 1 सेंटीमीटर क्यूब विच कितने ग्राम आएंगे? 8 ग्राम। 462 सेंटीमीटर क्यूब विच 460 462 सेंटीमीटर क्यूब विच कितना आएगा? 462 इंटू 8 होना आ जाएगा। 8 दूनी 16, 6 1 8 6 48, 9 4 8 चौका 32 4 36, 3696 ग्राम। देख लेंगे 3696 ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ kg 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ kg 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 3.696 kg, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा अपना, क्लियर। कैलकुलेशन बस ध्यान नाल करनी है, उरे गलती नाल 7 लिखता सीगा मैं, 21 कट बैठा सीगा, ठीक है। 7 नाल 7 कट जाएगा, 21 आ जाएगा। 462 1 सेंटीमीटर ग्राम की वेट हैगी 8 ग्राम, तो 462 सेंटीमीटर क्यूब का कितना आ जाएगा? 462 इंटू 8, तो kg विच अपना आंसर आ जाएगा 3.696। स्क्रीनशॉट ले लो, नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं आप। चलो फोर्थ क्वेश्चन की है, द रेडियस एंड थिकनेस ऑफ कॉइन आर 0.75 एंड 0.2 सेंटीमीटर। देखो थोड़े को एक सिक्का है, कॉइन रुपये का सिक्का मान लो, ठीक है। उसकी कुछ रेडियस होएगी तो कुछ हाइट होएगी, थिकनेस थोड़ी जी होंगी है कॉइन की, बट थिकनेस तो होंगी है। तो जो कॉइन है वो अपना किस कैटेगरी में आता है? सिलेंडर कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो कॉइन है वो अपना किस कैटेगरी आएगा? सिलेंडर कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो कॉइन की थिकनेस कितनी है? 0.2, इसका मतलब कॉइन की हाइट कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है। आर मेल्टेड द रेडियस एंड थिकनेस ऑफ कॉइन्स। देखो उरे कॉइन दे नाल की लग्या होया? एस लग्या होया, मतलब एक ही हैगा, प्लूरल हैगा, मतलब बहुत सारे सिक्के ने अपने को, ठीक है। तो बहुत सारे सिक्के ने ते सिक्कियां दा रेडियस की हैगा 0.75, हाइट कितनी है? 0.2। थिकनेस की हो जाएगी? थिकनेस मतलब मोटाई, मोटाई मतलब हाइट, ठीक है। आर मेल्टेड, इन्हां सारे ਜਿਹੜੇ सिक्के ने उन्हां सारे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਲਟ ਕਰਤਾ एंड कन्वर्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इन्हां सारे सिक्कियां ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ, उस तो बाद एक नवा सिलेंडर बनाया। कॉइन भी तो सिलेंडर ही होंगे, बट एक कॉइन एक सिलेंडर होएगा, 2 कॉइन 2 सिलेंडर, 3 कॉइन 3 सिलेंडर, मतलब बहुत सारे कॉइन ਨੂੰ ਮੈਲਟ करके अपने एक सिंगल सिलेंडर बनाता, ठीक है। एक इकट्ठा वाला सिलेंडर बनाया। उस न्यू सिलेंडर का जो रेडियस सीगा वो 3 सेंटीमीटर सीगा। रेडियस कितना सीगा? सिलेंडर रेडियस कितना इसका? 3 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो आपने की दसना? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स आर, किन्ने सिक्के होणगे अपने कोले, ठीक है। अपने कोले एक सिक्के की हाइट ते रेडियस दिता होया, इवें दे बहुत सारे सिक्के लेके आपने मैल्ट किया, तो उसनों मैल्ट करने तो बाद आपने दोबारा जमाता, जमा के आपने की बनाया? सिलेंडर बनाता। तो आपने दसना किन्ने सिक्के होणगे। ਜਿਹੜਾ सिलेंडर आपने बनाया उसका रेडियस 3 है, तो उसका हाइट कितनी है? 8। तो जो भी मैं थोड़ा दसिया सीगा सिलेंडर के केस में भी, जो भी आप एक चीज़ को मैल्ट करके दूजे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, या एक चीज़ को दूसरे फिगर में, एक 3D फिगर को दूसरे 3D फिगर में कन्वर्ट करना होंदा हैगा, तो दोनों पासे की सेम रहिंदा हैगा? वॉल्यूम सेम रहिंदा हैगा। तो मैनू एक गल दसो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू इवें ही रह देंगे। आर स्क्वायर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, उरे आ जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72, 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब,
सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उरे ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਨ ਨੇ, ਲੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਨ इज इक्वल्स टू n। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ n ਕਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਇਨ, ਦੋ ਕੋਇਨ, ਤਿੰਨ ਕੋਇਨ, ਆਪਾਂ ਨੇ n ਮੰਨ ਲਿਆ। वॉल्यूम ऑफ वन कोइन, एक सिक्के का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो कोइन भी तो सिलेंड्रिकल शेप का होंदा हैगा, तो कोइन का वॉल्यूम की आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर देखो 0.75 है, क्या मैं 0.75 नू इवें लिख सकता 75/100, ठीक है लिख सकते हैं। 25 के टेबल से कट दो, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं हाइट जी 2.2 हैगी है इसनों 2/10 लिख सकता, लिख सकते, पॉइंट तो बाद एक डिजिट है थले 0 आ जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा अपने को, ठीक है। तो आर स्क्वायर की जगह मैंने 3/4 का स्क्वायर लिखता इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 9/16 इंटू 1/5। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਇਨ ਮੰਨੇ ਨੇ n, ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ n ਕੋਇਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ n ਕੋਇਨ ਆਏਗਾ n इंटू पाई इंटू 9/16 इंटू 1/5। क्लीयर, ये एक कोइन का वॉल्यूम सीगा, इसनों n नाल मल्टीप्लाई करता अपने को की आ गया वॉल्यूम ऑफ n कोइन आ गया। हुण टोटल अपने को की हैगा जिन्ने भी n कोइन का वॉल्यूम हैगा उसी नूं आपां ने मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया हैगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ए हैगा। इट मीनस अपने को टोटल लॉजिक की बनया वॉल्यूम ऑफ n कोइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। n कोइन का जिन्ना वॉल्यूम होएगा आएगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होएगा। n कोइन का वॉल्यूम की है n इंटू पाई इंटू 9/16 गुना 1/5 इक्वल टू 72 गुना पाई, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखना, तो पाई नाल पाई कट जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू की आ जाएगी, रेड पेन नाल लिख देंगे हैं, 16 ते 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 इंटू 16 इंटू 5, 9 थले जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 के टेबल से जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 गुना 16 गुना 5, 16 5 80, 80 8 64, 640, 640 नंबर ऑफ कॉइन होंगे अपने को। क्लीयर, ठीक है। लॉजिक बस इन्ना ही रखना हैगा, एक चीज़ को मेल्ट करके दूजे विच ट्रांसफर किया हैगा, तो वॉल्यूम की रहेगा दोनों चीज़ों का सेम रहेगा। आपने एन मान लिया, एन कॉइन का वॉल्यूम कट लिया, सिलेंडर का वॉल्यूम कट लिया, दोनों को इक्वल रखांगे, एन आ जाएगा अपने को, ठीक है। ध्यान तुसी बस अपनी कैलकुलेशन का देना हैगा, कैलकुलेशन गलत ना करना। स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन की हैगा अपने को, अ हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल का बनया हुआ। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, देखो मेटल का एक हॉलो सिलेंडर हैगा, उसके बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ते अंदर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना है 352। देखो बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब की होया, रुको मैं दसदा, अपने को ले दे के हर बार यही आ जाता है, ठीक है। मान लो ये अपने को मेटल है 10 सिलेंडर हैगा, ठीक है, मुड़ जा, ठीक है। मान लो अपने को कर्व्ड सिलेंडर हैगा, बाहर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया केड़ा हो गया, ये जेड़ा बाहर वाला है, ठीक है, बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या होएगा, जेड़ा ये अंदर वाला हैगा, ये अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मतलब की होया, इन्होंने की दिता डिफरेंस बिटवीन आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया ते अंदर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना 352। देखो बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया की होएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला की लिखवा सीगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। जे मैं बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहा तो सिलेंडर दे आउटर डायामीटर नू लवांगा, ठीक है। बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब देखो आ सिलेंडर हैगा अपने कोले, जे मैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया लवां तो आप आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आप केड़ा रेडियस लवांगे, आउटर रेडियस लवांगे, बाहर वाला रेडियस लवांगे। तो जे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की गल करा तो आप केड़ा रेडियस लवांगे, इनर रेडियस लवांगे स्मॉल आर,
ठीक है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh, ठीक है। इनर अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया की हो जाएगा, अंदर वाला रेडियस लवांगे 2πr इंटू h, ठीक है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया लिए आप आउटर रेडियस लवांगे, इनर दे लिए आप इनर रेडियस लवांगे। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की आएगा 2πRh। आर की वैल्यू आपने दी हुई है नहीं, ठीक है, कोई गल नहीं। हाइट कितनी दी हुई है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 28, हाइट की वैल्यू 28, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 28, ठीक है। 28 दूनी 56 पाई आर, ठीक है। पूरे आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल आर इंटू एच, सॉरी पूरे आ जाएगा अगेन वही, हाइट कितनी दी सीगी 28, 2 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर इंटू 28, 56 पाई इंटू स्मॉल आर। इन्हों दोनों का डिफरेंस कितना दिता होया 352, ओके। 56 पाई कैपिटल आर माइनस 56 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू 352। 56 पाई कॉमन कट लो, आर माइनस आर कितना आ गया 352, तो आर माइनस आर देखो पूरे आ जाएगा 56 पाई की वैल्यू 22/7, आर माइनस आर इक्वल्स टू 352 आ जाएगा। तो आर माइनस आर कितना आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 352 इंटू 7 डिवाइड बाय 56 इंटू 22। आप कटिंग कर दें, 7 के टेबल से कट जाएगा ये 8, 8 से जाएगा 8 के टेबल से कट जाएगा 44, ठीक है। 22 के टेबल से कट जाएगा 2, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आ गया 2। इट मीनस थिकनेस कितनी आ गई अपने को 2 आ गई। होर की दिता होया, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज 2640, ओके। टोटल सरफेस एरिया कितना दिता होया 2640, ठीक है भाई, ओके। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, सॉरी हम ध्यान नाल देखना, उरे बस कैलकुलेशन ही रहेगी अपने को, कैलकुलेशन ध्यान नाल करना बस। टोटल सरफेस एरिया की होएगा 2πr प्लस आर इंटू एच प्लस 2πr² माइनस r² इंटू एच, यही होंगे, ठीक है। सॉरी उरे एच नहीं आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ हाइट, ठीक है। उरे हुन आप सॉल्व कर लेते हैं, देखो उरे आ जाएगा 2πr प्लस आर इंटू एच 2π, देखो ए की हो गया r² माइनस r², उरे ना फॉर्मूला ला दो a² माइनस b², ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ए टोटल सरफेस एरिया किस दे इक्वल है 2640 दे। हुन आप ना वैल्यूज पुट कर देंगे हैं, 2π की वैल्यू देखो 2π ना, उरे ना कैलकुलेशन ईजी करनी पड़ेगी, देखो उरे भी हाइट हैगा, उरे 2π है, उरे 2π हैगा, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, आर प्लस आर ना कॉमन कट लेते हैं बाहर, ठीक है। ब्रैकेट विच आर प्लस आर मैंने की काट लिया कॉमन काट लिया, ओके, ठीक है। अंदर की रह जाएगा 2πh प्लस 2π भी बाहर काट लो, आर प्लस आर भी बाहर काट लो, ते 2π भी बाहर काट लो। उरे कला की रह जाएगा h, उरे कला की रह जाएगा आर माइनस आर 2640, आर प्लस आर 2π की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, ब्रैकेट विच h की वैल्यू कितनी है 28, आ कितना आर माइनस आर कितना 2, पूरे 2 आ जाएगा 2640, ठीक है।
आर प्लस आर इंटू 2 × 22 × 7 पूरे आ जाएगा 3 = 2640। ठीक है, कटिंग कर देने आप, कटिंग करनी पड़ेगी। 0 ਨਾਲ 0 कट गया। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 132, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 44। ठीक है, तो 22 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ 2। ठीक है, पहला मैंने 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਤਾ, फिर 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 132, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 44, 22 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਤਾ 2। तो आर प्लस आर 7 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 डिनोमिनेटर है, उधर जाके न्यूमिनेटर हो जाएगा। आर प्लस आर कितना आएगा मेरे को 7 दूनी 14। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 2 सीगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना आ गया 14। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ r ਮਾਈਨਸ r 2 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ r ਪਲਸ r 14 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੀ ਐਸਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਈਨਸ 6 ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 8 ਜਮਾ 6 ਕਰਾਂ 14 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਇਹ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ठीक है, इस तो टफ ये कैलकुलेशन टफ भी नहीं है, बस तुम स्टैप बाय स्टैप करो तो ईजी तरीके नाल कैलकुलेट करो तो हो जाएगा। इन्ना भी टफ कैलकुलेशन है नहीं, इस थोड़ा जहा टाइम टेकिंग है। जो मान लो एग्जामिनर ने टफ पेपर बनाने की कोशिश की या सोचा भी तो इस तरीके का क्वेश्चन पा सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है तो तुम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हैगा अपने को, a hollow cylindrical tube is open at both end made up of iron 2 cm thick. If the external diameter is 50 cm and length of the tube be 140, find the number of cubic centimeter of iron in it. देखो इसका मतलब की होया, hollow cylinder ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 cm thick यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r 2 cm है। एक्सटर्नल डायमीटर 50 हैगा, मतलब कैपिटल रेडियस 50 का अध 25 आ गया, स्मॉल रेडियस कितना आ जाएगा 25 चो 2 माइनस कर दो 23 आ जाएगा। थिकनेस 2 है ना तो एक ही आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। आर माइनस आर 2 हैगा, कैपिटल आर 25 दी हुई है, स्मॉल आर की आ जाएगा, देखो स्मॉल आर की आ जाएगा अपने को आर माइनस 2, 25 माइनस 2 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्मॉल रेडियस कितना आ गया 23 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब हाइट कितनी दी हुई है 140 सेंटीमीटर। पता की करना है, द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इन इट। नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब की थोड़े तो की पूछ रहा है, इनडायरेक्टली वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम और उसने डायरेक्ट वर्ड नहीं पूछा कि वॉल्यूम दसो, उसने ये दसता नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर दसो, तो इनडायरेक्टली वॉल्यूम ही पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच 140 बाई बटा 7। देखो मैं हूँ ए नहीं करूँगा, 625 ते 23 का स्क्वायर लिखूंगा मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू 140, 22/7 इंटू 2 इंटू 48 इंटू 140। 7 के टेबल से कट जाएगा 20 बी, ये आ जाएगा अपने को 4 2 6 4 2 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा। 22 गुना 2 गुना 48 गुना बी 48 इंटू डबल 96 192 192 का डबल हो जाएगा अपने को 384 इंटू 11 कर देंगे 4 8 4 12 2 1 8 4 12 2 1 4 2 2 4। ऑप्शन सी आ जाएगा अपने को। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है कि बस वॉल्यूम कटना सीखा, इनडायरेक्टली बस इतना याद रखना वॉल्यूम की जगह उसने ए वाला वर्ड यूज कर रखा। वर्डिंग का खेल हैगा, वर्डिंग से कंफ्यूज ना होना। ठीक है, चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ये अज का अपना लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत 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 वधिया क्वेश्चन हैगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ रखा हैगा। ठीक है, क्वेश्चन की हैगा अ वेल, वेल का मतलब की हैगा कुआं। ठीक है, हाल चाल नहीं पूछ रहा हाउ आर यू आई एम वेरी वेल। ठीक है, इवें का नहीं पूछ रहा। अ वेल 20 मीटर इन डायमीटर 20 मीटर का अपने एक कुआं
ਪੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਖੂਹ ਪੱਟਦਾ, ਇਜ਼ ਡਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 20 ਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਪੱਟਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਮੀਟਰ ਡੀਪ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਾ 14 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 14 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 14 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਗਏ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਪੱਟਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦਾ ਅਰਥ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਆਲ ਓਵਰ ਇਟ ਟੂ ਅ ਵਿਡਥ ਆਫ 5 ਮੀਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ, ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਤਾ। ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ 5 ਮੀਟਰ ਵਿਡਥ ਜਿੰਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੂਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਈ 5 ਮੀਟਰ ਥਿਕਨੈਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਵਿਛਾएंगी, ਉਰੇ ਜੇ ਵਿਛਾਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ, ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 5 ਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਵਲੀ ਥਿਕਨੈਸ, ਆਵਲੀ ਥਿਕਨੈਸ, ਆਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ 5 ਮੀਟਰ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ 14 ਮੀਟਰ ਡੀਪ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਛਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਫਿਗਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, मान लो रेड कलर वाली लाइन की हैगी सरफेस लेवल हैगी, मी ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੂਆ ਸੀਗਾ, ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਤੀ, ਇਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸੀਗਾ ਖੂਹ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਹ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ, ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ। ਖੂਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵੈਲ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆयर एच, ठीक है। तो एम्बैंकमेंट किस शेप का है, होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्यों होंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। देखो हुन उरे आप वैल्यू पुट कर देंगे, पाई रेडियस कितना हैगा, कितना डायमीटर सीगा 20, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10, उरे डायमीटर 20 हैगा,
ठीक है। डायमीटर ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਡਾਇਮੀਟਰ 20 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, 20 ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਥਿਕਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਮੀਟਰ ਡੀਪ ਹੈ, ठीक है। डायमीटर 20 हैगा तो रेडियस कितना आ जाएगा 10, कितना डीप हैगा 14 मीटर, इक्वल्स टू पाई। देखो हुन थिकनेस कितनी है 5 मीटर, जे ए स्मॉल आर हैगा, इधर देखना, जे आ स्मॉल रेडियस हैगा स्मॉल आर ते ये 5 मीटर थिकनेस हैगी है, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, आ कैपिटल आर की हो जाएगा स्मॉल आर प्लस 5, कैपिटल आर की आ जाएगा स्मॉल आर प्लस 5, क्योंकि 5 मीटर थिकनेस है ना, मोटाई कितनी हैगी है 5 मीटर, ठीक है। देखो इवें देखो मोटाई की होंदी है, थिकनेस की होंदी है आर माइनस आर, ए कितना देता हुआ 5, कैपिटल आर कितना आ जाएगा 5 प्लस आर, स्मॉल रेडियस कितना 10, तो उरे आ जाएगा अपने को कैपिटल आर कितना आ जाएगा 5 प्लस 10 15 आ जाएगा, तो उरे कैपिटल आर की जगह 15 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 10 का स्क्वायर। हाइट आपने पता करनी है, ये दिता नहीं होया आपां नूं, हुण सॉल्व कर लेंगे आपां। पाई 10 का स्क्वायर 100 इंटू 14 इक्वल्स टू पाई, देखो अगेन 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 100 गुना एच, ठीक है। हुन कैलकुलेशन पहला नॉर्मल लिख देंगे, कैलकुलेशन बाद च कर लेंगे, पाई गुना 140 इक्वल्स टू उरे आ जाएगा अपने को पाई 225 जो 100 माइनस कर दो 125 गुना एच, ठीक है, एक कट जाएगा अपने को, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पाई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, करके देखते हैं। पाई नाल पाई कट जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी अपने को 140 बटा 125, हाइट तो पता करनी है, इसकी हाइट हैगी 14 मीटर हाइट दी, एक सेकंड, हाइट 14 ही दी हुई है ना, 14 मीटर डीप, ठीक है 14 मीटर डीप हैगी है। हाँ इनू जे मैं कटिंग करा 5 के टेबल से कट जाएगा 2 8, 5 के टेबल से कट जाएगा 25, 1 पॉइंट 28 है ना, 1 25 3 0 300, 28 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 25 ਨਾਲ डिवाइड करता, एक ते चल जाएगा 25 3.0, ठीक है, एक ते जाएगा 25, ठीक है 5 2 1.12 1.12 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट कितनी ऊपर तक जाएगा 1.12, चेक कर दें, टाइपिंग एरर आ गई होनी 1.12 1.12, ऑप्शन सी हैगा, उरे तुसी इवें कर लेना, ऑप्शन सी हैगा इस दा आंसर, पॉइंट आ जाएगा 1.12, ठीक है। कैलकुलेशन की आई अपनी 1.12 आ गई है, तो यही आएगा अपने को 5 मीटर, ठीक है। बी है ये 10 हो गया, 10 का स्क्वायर ये 14 हो गया, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 225 माइनस 100 125, सॉरी 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 1.12 नहीं है, और 10 का स्क्वायर 100 आएगा, हुन कटिंग कर देंगे आप, पाई 100 गुना 14 पाई गुना 125 गुना एच, पाई नाल पाई कट गया, एच की वैल्यू की आएगी 100 गुना 14 बटा 125, 4 बटा 5 14 चौके 56 बटा 5 कितना आएगा 11.2 मीटर, ठीक है। उसनों करने की लोड़ नहीं सीगी, 11.2 ही आएगा, वो करेक्ट ना करना, और कैलकुलेशन थोड़ी स्क्वायर नहीं होया सीगा, ठीक है क्लीयर। तो क्वेश्चन काफ़ी वधिया सीगा, ध्यान नाल करना इस तरीके ਨੂੰ कैलकुलेट, एमेंडमेंट वाला ये इकलौता क्वेश्चन सीगा ਜਿਹੜਾ प्रीवियस ईयर ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ठीक है। ਹੌਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ क्वेश्चन रेयर केस ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बट ਹੁਣ पूरा डिटेल ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ, जिन्ने भी प्रीवियस ईयर ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक आए ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ डिस्कस कर लिया हैगा,
ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੁੱਛੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਾਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।